روہی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بریکنگ دیں۔ پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر چودھری محمد انور کو پولیس نے رہا کر دیا۔ سی سی پی لاہور کی جانب سے انکوائری کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ محمد انور کو گزشتہ روز رائیونڈ پولیس نے لاہور میں ملتان سے گرفتار کیا تھا۔ آپ کو اہم خبر سے متعلق اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر چودھری محمد انور کو پولیس نے رہا کر دیا ہے۔ سی سی پی او لاہور کی جانب سے انکوائری کے احکامات جاری۔ محمد انور کو گزشتہ روز رائیونڈ پولیس لاہور نے ملتان سے گرفتار کیا تھا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ جنید انور سے۔ جی جنید، بتائیے گا، پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر چودھری محمد انور کو پولیس نے رہا کر دیا ہے۔ جی بالکل، کچھ سویرے کا یہ واقعہ ہے کہ چودھری محمد انور چیئرمین پاکستان کسان اتحاد کے ان کے دفتر سے لاہور رائیونڈ سٹی پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد جب ان کو معلوم ہوا، جب ایف آئی آر کی تصدیق کی گئی تو ایف آئی آر جاری نکلی، جس کے اوپر سی سی پی او لاہور نے ایکشن لیا اور تقریباً رات 2 تک جو ہے وہ ایس ایس پی کے ساتھ جو ہے ان کی میٹنگ رہی۔ اس کے بعد جو ہے چودھری انور سے معذرت بھی کی گئی جھوٹی ایف آئی آر پر، ان کو جو ہے وہ فوری رہا بھی کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس سے رہائی کے بعد جو ہے کسان اتحاد کی جانب سے کل کی جو دھرنے کی کال تھی اس کو بھی واپس لے لیا گیا تھی۔ ٹھیک ہے جنید انور، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اہم خبر دیں آپ کو، ملتان میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی نے بی اے بی ایس سی سالانہ امتحانات کا اعلان کر دیا ہے۔ بی ایس سی امتحانات میں پہلی 5ویں پوزیشنز طالبات نے حاصل کی ہیں، جبکہ بی اے امتحانات میں بھی پہلی 4 پوزیشنز پر طالبات براجمان رہیں۔ کورونا کی وجہ سے نتائج تقریب منعقد نہیں کی گئی، جبکہ بی اے امتحانات میں پہلی پوزیشن ہمنا خان، جبکہ بی ایس سی میں پہلی پوزیشن عروج جاوید نے حاصل کی ہے۔ بی اے بی ایس سی امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ بی ایس سی امتحانات میں پہلی 5 پوزیشنز پر طالبات براجمان ہیں، جبکہ بی اے امتحانات میں بھی پہلی 4 پوزیشنز خواتین نے طالبات نے حاصل کر لی ہیں۔ کورونا کی وجہ سے نتائج تقریب منعقد نہیں ہو سکی۔ بی اے امتحان میں پہلی پوزیشن ہمنا خان، جبکہ بی ایس سی میں پہلی پوزیشن عروج جاوید نے حاصل کر لی ہے۔ عروج جاوید نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے بی ایس سی میں، جبکہ ہمنا خان نے بی اے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان نے بی اے بی ایس سی سالانہ امتحانات کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلی 5 پوزیشنز بی ایس سی میں طالبات نے حاصل کر لی ہیں، جبکہ بی اے کی بات کر لیں تو بی اے میں امتحانات میں پہلی 4 پوزیشنز پر طالبات براجمان ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں، ملتان میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی نے بی اے بی ایس سی سالانہ امتحانات کا اعلان کر دیا ہے۔ بی ایس سی امتحانات میں پہلی 5 پوزیشنز طالبات نے حاصل کی ہیں، جبکہ بی اے امتحانات میں بھی پہلی 4 پوزیشنز پر طالبات براجمان رہیں۔ کورونا کی وجہ سے نتائج تقریب منعقد نہیں کی گئی۔ بی اے امتحانات میں پہلی پوزیشن ہمنا خان، جبکہ بی ایس سی میں پہلی پوزیشن عروج جاوید نے حاصل کی ہے۔ امریکہ، فرانس، انگلینڈ سمیت دنیا بھر کے کھلاڑی شہر اولیا آنے کو تیار۔ ملتان دنیا بھر کے اسکواش کے کھلاڑیوں کا بنے گا میزبان۔ بلوچستان انٹرنیشنل اسکواش لیگ اور صدرن پنجاب انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کی تیاریاں۔ انٹرنیشنل لیگ کے 4تھے ایڈیشن کا شیڈیول جاری کر دیا گیا، جبکہ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور بلوچستان خصوصی شرکت کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں، امریکہ، فرانس، انگلینڈ سمیت دنیا بھر کے کھلاڑی شہر اولیا آنے کو تیار ہے۔ ملتان دنیا بھر کے اسکواش کے کھلاڑیوں کا بنے گا میزبان۔ بلوچستان انٹرنیشنل اسکواش لیگ اور صدرن پنجاب انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کی تیاریاں عروج پر ہیں، جبکہ انٹرنیشنل لیگ کے 4تھے ایڈیشن کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ امریکہ، فرانس، انگلینڈ سمیت دنیا بھر کے کھلاڑی شہر اولیا آنے کو تیار ہیں۔ دنیا بھر کے سیاحوں کو نوابوں کا شہر تسخیر کرنے کا ملے گا موقع۔ سیاحت کے فروغ کے لیے کمشنر بہاولپور کی جانب سے بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ چولستان جبریلی پر شہر کو سجانے کے احکامات دے دیے گئے ہیں، جبکہ داخلی اور خارجی راستوں پر خصوصی چراغاں کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ کراچی موڑ، لائٹ ہاؤس، فلائی اوور اور سرکولر روڈ کو بھی سجانے کا اندیا دے دیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے سیاحوں کو نوابوں کا شہر تسخیر کرنے کا موقع ملے گا۔ سیاحت کے فروغ کے لیے کمشنر بہاولپور کا بڑا فیصلہ۔ چولستان جبریلی پر شہر کو سجانے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ داخلی اور خارجی راستوں پر خصوصی طور پر چراغاں کرنے کا حکم دیا گیا۔ سستی سواری مہیا کرنے والے ریلوے کے حالات بدترین ہو گئے۔ منافع میں جانے والا محکمہ ریلوے اربوں کے خسارے تلے دب گیا۔ ریلوے مالی سال 2020 اور 21 کے 7 ماہ مکمل آمدنی کے مد میں 14 ارب 54 کروڑ 98 لاکھ سے زائد کا خسارہ۔ ریلوے کو 7 ماہ میں 41 ارب 21 کروڑ آمدنی کا ہدف دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے سی او میٹروپولیٹن کارپوریشن اقبال فرید کی بزدار ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ اقبال فرید نے وزیر اعلیٰ کو کارپوریشن کی کارکردگی بارے آگاہ کیا۔
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सर्विस डिलीवरी में मजीद बेहतरी लाने का हुक्म भी दिया। सीएम पंजाब से दौरा मुल्तान पर सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इकबाल फरीद ने मुलाकात की। सीएम पंजाब को कॉरपोरेशन की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर सीएम पंजाब ने कॉरपोरेशन को कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने का हुक्म जारी किया। सीएम का मजीद कहना था कि कॉरपोरेशन सर्विस डिलीवरी को बेहतर करे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से साबिक जिला नाज़िम मुल्तान फैसल मुख्तार की मुलाकात हुई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी इंतशार मुल्क और पार्लिमानी इदारों के मफाद में नहीं है, सियासी कुव्वतों को सेनेट इलेक्शन पर फोकस करना चाहिए, ऐसा परवेज इलाही का कहना है। यूनाइटेड मोटर्स की जानिब से मुल्तान मैदान बैंक नवा शहर ब्रांच में यूनाइटेड अल्फा की टेस्ट ड्राइव के इवेंट का इनेकाद किया गया, जबकि गाड़ी की नुमाइश के साथ साथ शहरियों को गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी करवाई। आइए आपको दिखाते हैं। मुल्तान में यूनाइटेड मोटर्स की जानिब से आज मीज़ान बैंक नवा शहर ब्रांच में टेस्ट ड्राइव इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 1000 सीसी यूनाइटेड अल्फा की नुमाइश कराई गई और लोगों ने टेस्ट ड्राइव भी की। बहुत सुंदर गाड़ी बनाई है इन्होंने, गाड़ी वैसे मुझे बहुत पसंद आई है। सस्पेंशन बाकी हर चीज़ इसकी बहुत अच्छी है, क्वालिटी में यूनाइटेड वालों ने निकाली है गाड़ी। इसकी मतलब गाड़ी की बॉडी आउटलुक, खासतौर पे जो मल्टीमीडिया एलईडी मुझे है ना, वो इसमें बड़ा फीचर पसंद आया है। शहरियों का कहना है कि यूनाइटेड अल्फा काफी अच्छी गाड़ी है। जो खसूसियात इस गाड़ी की हैं, इसके साथ की गाड़ियों में नहीं पाई जाती। स्पेसिफिकेशन में अगर मैं इसके इंजन की परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये एरो 4 कंप्लाइंट इंजन है, 16 वैल्व्स इंजन है। अगर इसके हम इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर खूबसूरत तरीन इसका डैशबोर्ड है, जिसके अंदर एक 10 इंच का एक इंफोटेनमेंट सिस्टम है, पावर डोर हैं, पावर विंडोज़ हैं। खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए इसके अंदर अलॉय व्हील्स हैं। यूनाइटेड मोटर्स के जीएम मोहम्मद अफजल का कहना था कि शहरियों का काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जिस शहर में भी इवेंट किया है कामयाब रहा है। कोशिश की है कि लोगों के लिए कम कीमत में अच्छी सवारी निकालें। मुल्तान में यूनाइटेड की जानिब से आज टेस्ट ड्राइव इवेंट अरेंज किया गया फॉर द न्यूली लॉन्च्ड यूनाइटेड अल्फा, जो कि काफी ज्यादा कामयाब रहा है। जबकि इस गाड़ी के हवाले से यही कहना है कि आने वाले वक्तों में ये गाड़ी अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा कामयाब रहेगी। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने दावे किए थे कि 100 दिन में बहुत कुछ करेंगे, मगर इस हुकूमत ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उनका मजीद क्या कहना है, आपको बताएंगे अमजद मलिक। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली फैसल करीम कुंडी ने मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि इस मुल्क में बहुत से मसाइल हैं। इमरान खान ने इक़्तिदार संभालते ही बहुत से वादे किए। इमरान खान का सबसे बड़ा वादा जनूबी पंजाब सूबा था और आज जनूबी पंजाब सूबा महाज वालों से पूछते हैं कि उनके मुआहदे का क्या हुआ। खुदारा आप जागें, और आपको क्या सबूत चाहिए कि एक वज़ीर आज़म पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में बैठ के अपने मेंबरान से कहता है कि मैं आपको 50-50 करोड़ रुपए अपना तरक्याती कामों की मद में दूंगा। 2.5-3 साल उनको याद नहीं आया, आज उनको याद आया कि मैंने अपने मेंबरान को कुछ देना है। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पीडीएम ने लॉन्ग मार्च को महंगाई मार्च का नाम दिया है। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मुकम्मल तैयार है। पीडीएम सेनेट इलेक्शन में मुश्तरका तौर पर हिस्सा लेंगे। बल्दियाती इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी अभी शुरू हो चुकी, पहले भी थी, और अभी हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराएगी। कि अगर जो है इन पे रहा तो ये इलेक्शन नहीं करेंगे। इनको पता है कि हमने इलेक्शन नहीं जीतना। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी कानून साजी लेके आए ताकि हम जो है आवाम के जरिए वोट न लें, किसी काउंसलरों को और इनको खरीदो फरोख्त करके हम अपने नाज़मीन बिठा दें। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि उनके दौर में गंदुम वाफिर थी, किसान खुश था और मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन था। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इंतजामिया के रवैये के खिलाफ मुख्तलिफ मेडिसिन कंपनियों के मेडिकल रैप सरापा एहतजाज बन गए। मेडिकल रैप की बड़ी तादाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर जमा हो गई। गुज़श्ता हफ्ते एक मेडिकल रैप को इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जिस्मानी मुशक्कत की सजा की वीडियो सामने आई थी। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कोई बात। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इंतजामिया के रवैये के खिलाफ मुख्तलिफ मेडिसिन कंपनियों के मेडिकल रैप्स ने एहतजाज किया। इस मौका पर फार्मा कंपनियों के मेडिकल रैप्स ने शदीद नारेबाजी की। उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर कार्डियोलॉजी इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। उन्होंने कहा आप मेडिकल रैप हो, आप अंदर क्यों आए हो? मुझे इन्होंने मुझसे वीडियो बनवाई
اور مجھ سے اٹھک بیٹھک بھی کروائی اور وہ ویڈیو انہوں نے سوشل میڈیا پہ دی جس کی وجہ سے میری بہت بری جگہ سے بےعزتی بھی ہوئی ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھی کی کارڈیالوجی انتظامیہ کی جانب سے ویڈیو بنانے، وائرل کرنے، جسمانی مشقت کی سزا پر وہ سراپا احتجاج ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملوث ملازمین کو سزا دی جائے، جبکہ متاثرہ میڈیکل ریپ کا کہنا تھا اسے کمرے میں جسمانی مشقت کرائی گئی اور ویڈیو بنائی گئی جسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گیا۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے، ہماری ساری فارما یونٹی کا مطالبہ یہی ہے کہ ایم آئی سی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو بے ایمانہ تشدد ہمارے کولیگ پہ کیا گیا ہے وہ آ کے ہمارے کولیگ سے معافی مانگے، یا ایم ایس صاحب جو 2-3 دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکشن لے رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ملوث افراد کے خلاف انتظامیہ کارروائی کرے۔ کیمرامین تنویر گیلانی کے ساتھ بلال نیازی، ملتان۔ سخی سرور کے شہری اپنے حقوق کے لیے میدان میں آ گئے۔ حقوق کی غیر منصفانہ تقسیم پر احتجاجی کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ معززین اور سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ ہمیں رپورٹ کریں گے محسن الملک۔ علاقے سخی سرور میں شہری اپنے حقوق کے لیے میدان میں آ گئے۔ احتجاجی کنونشن کا انعقاد کیا۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم پر بات کی گئی۔ سخی سرور کنونشن میں معززین اور سیاسی و سماجی شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ سخی سرور سے نکلنے والی معدنیات کی غیر قانونی منتقلی کا نوٹس لیا جائے، قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کے نقصان سے بچایا جائے۔ آج ہم نے یہ جلسہ کیا ہے اور اسی لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اپنے حق کے لیے آپ لڑتے رہیں گے، آپ ان بات پر لوگوں کو نہیں کھانے دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارا یہاں پہ جو آمدنی ہے نا، کوئی کھاد فیکٹری سے کم آمدنی نہیں ہے، یہ اتنی آمدنی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ جب سی پیک کا دور چلتا رہا نا پچھلے دور میں نا، یہ کم از کم ڈیلی کا 1 کروڑ روپے کی آمدنی ایک ماہ میں 30 کروڑ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ گورنمنٹ کو کیا دیتے ہیں، 2 سال کا دیتے تھے 12 کروڑ روپیہ۔ سخی سرور کے حقوق پر چند افراد قابض ہیں۔ مظاہرین نے سابق چیئرمین ملک ارشاد اور ملک غلام یاسین کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ سخی سرور میں ہونے والے اس احتجاجی کنونشن کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے وسائل مخصوص افراد سے لے کر منصفانہ تقسیم کی جائے جس کا فائدہ شہر کو ہو۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ محسن الملک، سخی سرور۔ میاں والی کے علاقے موج کے سابق یو سی چیئرمین مولوی عظمت کی قیادت میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے امین اللہ خان کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ ایم پی اے امین اللہ خان کا کہنا ہے کہ سیاسی رنجش کے باعث الزامات لگائے گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ میاں والی میں پی ٹی آئی ورکرز اپنے ایم پی اے کے خلاف پھٹ پڑے۔ پی ٹی آئی موج کے سابق یو سی چیئرمین مولوی عظمت اللہ خان نے الزام لگایا ہے کہ تحریک انصاف کے ایم پی اے امین اللہ خان پانی چور رشتہ داروں سے ملے ہوئے ہیں۔ ایکسین ایریگیشن کالا باغ نے ناجائز موگوں کے خلاف آپریشن کیا تو ایم پی اے امین اللہ خان نے ان کا تبادلہ کرا دیا۔ انکروچمنٹ جب شروع کی تو ہمارے جو ایم پی ہیں امین اللہ خان جو عمران خان کے حلقہ کے ہیں، اس نے انتقاماً اس ایکشن کا تبادلہ کرا دیا، وہ اس لیے کہ وہ ناجائز موقع والے اس کے رشتہ دار تھے۔ سابق یو سی چیئرمین مولوی عظمت اللہ کی قیادت میں شہریوں نے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا اور ایم پی اے کے خلاف خوب نعرے بازی کی۔ انہوں نے کہا کہ ایکسین ایریگیشن کے تبادلے کو منسوخ نہ کیا گیا تو وہ احتجاج کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پانی چوروں کے خلاف ایکسین ایریگیشن کارروائی کر کے انہیں پابندی سلاسل کریں گے۔ ایکسن صاحب یہ اچھے کام کیتے ہیں، اس ناجائز موقع کو توڑنے کی کوشش کی تھی۔ امین اللہ خان اس نے تبادلہ کرا دیتا ہے۔ یہ دوسرا سارے ایشو ہے نا، کبیر والا نالا اور آمد والا نالا، بالکل اس واسطے ایم پی صاحب کوئی توجہ نہیں دیتی۔ ایم پی امین اللہ خان کا کہنا ہے کہ ایکسین کا تبادلہ حکومت پنجاب کا فیصلہ ہے، موگوں کے معاملے میں کوئی رشتہ دار شامل نہیں۔ سابق چیئرمین موج سیاسی رنجش کے باعث الزامات لگا رہے ہیں۔ جی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے اپنے ایم پی اے کے خلاف ہی پھٹ پڑے۔ ان کا کہنا ہے کہ محکمہ انہار کے ایکسین نے ناجائز موقع جب بند کروانے شروع کیے تو ایم پی امین اللہ خان نے اپنے رشتہ داروں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکسین کا تبادلہ کروا دیا ہے۔ ان کی جانب سے مطالبہ رکھا جا رہا ہے کہ ایکسین کے تبادلے کو منسوخ کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو احتجاج بڑھ سکتا ہے، بنی کالا چک جا سکتا ہے اور عدالت سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ پیٹرول پمپ سیل کیوں کیے؟ پنجاب پیٹرول پمپس یونین میدان میں آ گئی۔ ملتان پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے پیٹرول پمپس ڈی سیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امجد ملک کی رپورٹ دیکھیے۔
पेट्रोल पंप सील क्यों किए गए, आपको बताते चलें। पंजाब पेट्रोल पंप्स यूनियन मैदान में आ गई। मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन ने पेट्रोल पंप्स डी सील करने का मुतालबा कर दिया है। पेट्रोल पंप्स सील क्यों हुए, ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल पंप्स यूनियन ने मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, खानेवाल, लिया समेत दीगर शहरों से पेट्रोल पंप्स मालकान ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मालकान का कहना था कि वो कस्टम एक्ट के तहत पेट्रोल स्मगलिंग और गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयों की तायद करते हैं, मगर बेशतर पेट्रोल पंप्स किसी वजह के बगैर ही सील किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंप्स कानूनी हैं और नक्शे इनके पास हैं। एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कार्रवाइयाँ कर रही है गवर्नमेंट, और की भी है उन्होंने। स्मगलिंग की जहाँ तक रोकथाम का ताल्लुक है, ये बहुत खुशाइन बात है, हम उसकी तायद करते हैं। लेकिन पेट्रोल पंप्स को गैर कानूनी तौर पे सील किया जा रहा है कस्टम एक्ट के तहत। कस्टम एक्ट के तहत सील होने का मतलब ये है कि हमारे पेट्रोल पंप्स पे जो भी प्रोडक्ट हैं, डीजल और पेट्रोल है, वो गैर कानूनी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि उनके पास के फॉर्म न होने की वजह से पेट्रोल पंप सील किए गए। कुछ मोहलत दी जाए ताकि वो अपना कारोबार कर सकें। के फार्म की वजह से बंद किया गया था, हमें जबकि इसके बारे में बताया नहीं गया। तो जैसे ही हमें पता चला, हमने अपना दफ्तर से रब्ता किया, तो हमने फीसें भी अदा की हुई थी। प्रोसेस अभी कंपनी के अंडर में था, अंडर प्रोसेस था, तो इस वजह से अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ। इन्होंने हमारा 16 दिन से पंप बंद किए हुए हैं। मालकान का कहना था कि पेट्रोल पंप्स डी सील किए जाएं, वरना एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन मुजैद सुल्तान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। रहीम यार खान के शेख जैद अस्पताल के 800 से ज्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी और रेगुलर न होने का मामला। मुतालबा तस्लीम न होने पर मुलाजमीन एक बार फिर से सरापा एहतजाज बन गए। इसी हवाले से आमिर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। रहीम यार खान में 3 सूबों के संगम पर वाक़े शेख जैद हॉस्पिटल के 800 से जायद डेली वेजेस मुलाजमीन ने 5 माह की तनख्वाहें ना मिलने और रेगुलर के मुतालबा तस्लीम ना होने पर MS ऑफिस का घेराव करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मुतालबात के हक में नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि मुतालबात के हक में 11 रोज तक खानपुर रोड अड्डा पर एहतजाजी धरना दिया गया, जिस पर इंतजामिया ने 3 दिनों में मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी कराई, मगर अब 18 दिन गुजर गए हैं मगर मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा सके। धरने से जब उठाया गया तो उस वक्त 11 दिन हो चुके थे, लेकिन DC साहब आए, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के जो मेंबरान थे, चेयरमैन साहब थे, इन सब लोगों ने, प्रिंसिपल साहब ने हमें गारंटी दी थी कि हम आपको 3-4 दिन में विदिन अ वीक हम आपको सैलरीज दे देंगे। मुजाहिरीन ने कहा कि 5 माह की तनख्वाहें ना मिलने पर माली मुश्किलात से परेशान हैं। अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। ये जनवरी भी गुजर गया है, जनवरी स्टार्ट है, उसके बाद हमारी तनख्वाह तकरीबन 5 माह की हो गई है। जो हमें आसरा दे कर खानपुर अड्डा से उठाया गया था, उस वक्त कह दिया था 2 से 3 दिन में जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक हमारा कोई प्रोसीजर जारी नहीं। प्रिंसिपल शेख जैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद ने कहा कि अस्पताल इंतजामिया 2 से 3 दिनों में मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी कर देगी। डायरेक्टर फाइनेंस साहब, आपको पता है कि वो अपना चार्ज छोड़ के वो चले गए थे, फिर एक मुतबादल अरेंजमेंट हुकूमत पंजाब ने किया है, तो वो दूसरे डायरेक्टर साहब के पास एडिशनल चार्ज है, तो उन्होंने कोई 2 दिन की मोहलत मांगी है। उनकी डेरा गाजी खान में कुछ मसरूफियात हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बुध के दिन हम पॉजिटिवली अहम पेशरफ्त करेंगे। प्रिंसिपल शेख जैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद ने कहा कि अस्पताल इंतजामिया संजीदगी से मुलाजमीन के मसाइल हल करने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान का सूरज मियानी रोड 7 साल से जिला इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। टूट फूट की वजह से धूल और गर्दो गुबार का तूफान है। ताजिर सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। हमें रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। धूल में आती ये मुल्तान की अहम शाहरा सूरज मियानी रोड है, जो इंतजामिया की कारकर्दगी का पता दे रही है। शहरियों का कहना है कि अहम तजारती मरकज में शुमार होने वाला सूरज मियानी रोड 7 साल से इंतजामिया की नजरों से ओझल है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। ये जो मिट्टी उड़ रही है, ये कई बीमारियों की जड़ है। मेहरबानी की जाए, लेकिन हमारी किसी ब्यूरोक्रेसी ने, कमिश्नर साहब ने, डिप्टी कमिश्नर ने, MD वासा ने, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी।
शहरियों का कहना है कि रोड से गुजरती बसें ताजिरों के लिए किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं। गर्दो गुबार की वजह से सांस लेना भी महार है। ताजिर सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। परेशान ताजिरों का कोई वाली वारिस नहीं। हमारी जिला इंतजामिया से यही गुजारिश है कि इस खस्ता हाल रोड को जो ना ठीक किया जाए। हादसात होते हैं, अक्सर और बेशतर यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, मट्टी धूल और उसके अलावा जो है ना काफी मसाइल हैं। शहरियों का कहना है कि वो कोरोना से तो हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके बच जाएंगे, मगर रोड की खस्ता हाली के बायस गर्दो गुबार से कैसे बचेंगे। शहर मुल्तान की अहम शाहराहों में शुमार होने वाले सूरज मियानी रोड पर टूट फूट के बायस शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया फिलफौर इस मसले को हल करे ताकि ताजिरों का मसाइल का सद्देबाब मुमकिन हो सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। शहर औलिया की अजमत रफ्ता उजागर करने के लिए काम शुरू। सराफा बाजार की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। मंसूबे पर कितनी लागत आएगी, कब मंसूबा मुकम्मल होगा, बताएंगे अमजद मालिक। मुल्तान की सकाफत और हुस्न बहाल करने का आगाज हो गया। चेयरमैन वॉल्ड सिटी प्रोजेक्ट नदीम कुरैशी और डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने सराफा बाजार बहाली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। रुकने सूबाई असेंबली नदीम कुरैशी का कहना था कि हरम गेट और मुसाफिर खाना के बाद सराफा बाजार वॉल्ड सिटी का तीसरा मंसूबा है। शहर की तारीखी मसाजिद को भी वॉल्ड सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। अंदरूने शहर लकड़ी से बने घरों को असल हालत में महफूज करने के लिए स्टडी मुकम्मल हो चुकी है। अब शहर औलिया की पुरानी तहजीब और सकाफत बहाल की जाएगी। यहाँ सराफा बाजार के उस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के लिए आए हैं जो पिछले 3 साल से बंद था, बल्कि ये प्रोजेक्ट तकरीबन को 8-10 साल बंद रहे PMLN की गवर्नमेंट में। अब हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि हम इस प्रोजेक्ट के ज़ेरे इत्मीनान मुल्तान के अंदरूनी शहर के लोगों को भी न सिर्फ यहाँ की सकाफत को बहाल करने में अपना रोल प्ले करें, बल्कि अंदरूनी शहर के लोग साफ पानी, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन से महरूम है, उनके लिए जदोजहद करें। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक का कहना था कि मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होगा। 3 करोड़ 20 लाख रुपए लागत आएगी। 100 मीटर पर मुहित दुकानों की बैरूनी सतह को कदीमी शनाख्त दी जाएगी। वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट के तहत हम ये प्रोजेक्ट हमने इनिशिएट किया है। 3 करोड़ से ज़्यादा की लागत है और 80 मीटर्स की जो सराफा बाजार का फसाड है उसको हम क्लियर करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में हम इसको एक्सटेंड भी करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने AC सिटी को हरम गेट से तजावुजात के खात्मे का हुक्म दे दिया। रेडी बानों को मोटरसाइकिल स्टैंड की मुतबादिल जगह फराहम करने की भी हिदायत कर दी। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान पुलिस ने रजाकारों को पुलिस यूनिफॉर्म पहनने और शहरियों की तलाशी लेने से रोक दिया। रजाकार सिर्फ एहलकारों की मुआवनत कर सकेंगे। माहिर इमरान की रिपोर्ट। इस लाइन में रजाकारों को डिसिप्लिन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। DSP हेडक्वार्टर यूसुफ हारून का कहना था कि रजाकार पुलिस यूनिफॉर्म पहने और ना ही शहरों की तलाशी लें, सिर्फ पुलिस एहलकारों की मुआवनत करें। यूनिफॉर्म के हवाले से इनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि जो इनको ऑथोराइज, इनका मंजूर शुदा यूनिफॉर्म है, ये उसको पहने। मजीद उसमें बेहतरी ये लाएं कि अपनी यूनिफॉर्म एक जैसी हो इनकी और अच्छी यूनिफॉर्म पहने, बावकार यूनिफॉर्म पहने। शहर के 31 थानों में तैनात रजाकारों को ब्रीफिंग दी गई। रजाकार और शहरों से खुश असलूबी से पेश आएं और अच्छी यूनिफॉर्म पहन कर रखें। और साहबात पहनाते या खुद पहन लेते थे, अब इनकी ममानत कर दी गई है कि कोई भी आदमी रजाकार हमारा पुलिस की वर्दी नहीं पहनेगा और आवाम को बिला वजह तंग नहीं करेगा। DSP हेडक्वार्टर का कहना था कि अफसरान रजाकारों की तनख्वाहों बढ़ाने की तजवीज दी गई है। रजाकार पुलिस के शाना बशाना काम करते हैं, इनका ख्याल रखना मुल्तान पुलिस की जिम्मेदारी है। कैमरामैन AD नवाज के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। डीडी खान पुलिस में भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया है। दरखास्त गुजारों के कद पेमाइश का अमल पुलिस लाइन में जारी है। इसी हवाले से आशीष फाक रिपोर्ट करेंगे। खान में पुलिस भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया। पुलिस लाइंस में बॉडी मेजरमेंट का अमल शुरू कर दिया गया है, जिसकी निगरानी DPO समेत आला पुलिस ऑफिसर्स कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस है ये मंडे से लेके जुमे तक, फ्राइडे तक ही जारी रहेगा, जिसमें 5 दिन है। आज तकरीबन को 2,500-3 हज़ार के करीब आ जाएँ, इसी तरह कल आएंगे, फिर जो लेफ्ट ओवर्स हैं वो आएंगे। और सैटरडे, संडे और मंडे ये 3 दिन जो हैं इस पे इनका एंडोरेंस है, जो दौड़ टेस्ट है वो होगी और उसके बाद फिर ये एंटीस में जाएगा और फिर हम इंटरव्यूज की स्टेज पे पहुंचेंगे। पुलिस लाइन में मेयरमेंट के लिए आने वाले जवान भी मेयरमेंट के अमल पर मुतमईन दिखाई दिए। उम्मीदवारों का कहना था कि तैनाती हो गई तो अवाम की खिदमत की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पुलिस में ये मेजरमेंट हुआ या क्लियर हो चुका हूँ, इंशाल्लाह मैं पुलिस में भर्ती होकर कौम की खिदमत करूंगा।
SPU पेट्रोलिंग और पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए 8000 से जायद दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें 200 से जायद खवातीन की भी दरख्वास्तें शामिल हैं। डेरा गाजी खान में भी पुलिस का भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया है। पुलिस लाइन में आने वाले दरख्वास्त गुजारों की कद पेमाइश का सिलसिला जारी है, जो जुम्मे तक जारी रहेगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान में कौमी ताजर इत्तेहाद का इजलास हुआ। ताजरों ने गोशवारे जमा कराने की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ाने का मुतालबा किया। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में सदर कौमी ताजर इत्तेहाद सुल्तान महमूद मलिक की जेर सदारत इजलास हुआ। इस मौके पर सदर ताजर इत्तेहाद का कहना था कि छोटे ताजरों पर बड़े टैक्स डाले जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से पहले ही कारोबार ठप हो चुके हैं। गोशवारे जमा न कराने पर FBR ने लाखों रुपए के टैक्स भिजवाए हैं, जिसकी वजह से छोटा ताजर बड़ी मुश्किल में है। 50 लाख से ज्यादा ताजर, छोटा ताजर शटर गेट वाला कारोबार कर रहा है, लेकिन उसमें से कोरोना जो लगा उससे मुल्क की माशियात बैठ गई। हम लोगों में पैसे नहीं था। जिन 5 से 6 लाख हमारे ताजर अपने गोशवारे जमा नहीं करा सके, लेकिन FBR के काले और करप्ट भेड़ी अफसरान ने उनको नोटिस जारी करना शुरू कर दिए। ताजरों का कहना था कि पहले ही महंगाई से कारोबार खत्म हो रहे हैं, ऊपर से भारी टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत छोटे ताजरों को रिलीफ दे, लेकिन अभी तक कोई चेक इन बैलेंस नहीं है, कहीं भी मैनेजमेंट नजर नहीं आती। खुदा के लिए छोटे ताजरों पर रहम किया जाए, बड़ों पर रहम किया जाए। बड़ा तो गुजारा कर लेगा, लेकिन छोटों का क्या हाल है। सदर ताजर इत्तेहाद ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 28 फरवरी तक तौसीह करने और जारी नोटिस वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर यावर बुखारी की मियांवाली के इलाके पक्की शामर्दान आमद हुई। अलहुदा ट्रस्ट अस्पताल में डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह किया। ये रिपोर्ट देखिए। सोशल वेलफेयर यावर बुखारी ने मियांवाली के इलाके पक्की शाह मर्दान में अलमहदी ट्रस्ट अस्पताल में डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह किया। तकरीब में PTI के रहनुमा अताउल्ला खान शादी खेल, डिप्टी कमिश्नर मियांवाली, डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर हुसैन गोंदल समेत कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। सूबाई वजीर यावर बुखारी ने कहा कि महकमे सोशल वेलफेयर में जिद्दत लाई जा रही है। हम लोग सोशल वेलफेयर में एक जो जिद्दत ला रहे हैं वो इस बात में ला रहे हैं कि जितनी स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे टेफ्टा है, PHDF है, जो पैसे देता है, हम उनको बीच में अपने साथ मिला के हम अपने सनतजारों को, हम अपने बहबूद वाले इदारों को मिला के 40 इदारे हमारे पास। हम उधर सेकेंड टाइम लड़कों को, फर्स्ट टाइम हम लड़कियों को वो स्किल्स देंगे औरतों को, सेकेंड टाइम में हम लड़कों को वो स्किल्स दे के, और जितनों को स्किल्स दी जाएंगी उनमें 70% हमारी एग्रीमेंट होगी कि इनको नौकरियां मिलेंगी। सूबाई वजीर यावर बुखारी ने कहा कि बैतुल माल का फंड रूरल सतह पर मुंतकिल किया गया ताकि गरीब शहरियों को धक्के न खाने पड़े। 30 दिन के अंदर NGOs की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। हम लोगों ने एक नया सिस्टम बनाया है जहां पे हम नए कानून ला रहे हैं। NGOs 2-2 साल तक आपको पता है रजिस्टर नहीं होती थी, उनको लोग ब्लैकमेल करते थे, उनको लोग तंग करते थे। जो भी हमारा नया कानून पास होगा उसके जरिए 30 दिन के अंदर NGOs, 2 साल में नहीं 30 दिन में उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगी। सूबाई वजीर ने डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह करने के बाद यकीन दहानी कराई कि अलमहदी अस्पताल को एक डायलिसिस मशीन जल्द देंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। शादियों का सीजन है, मगर सोने की महंगी कीमतों की वजह से खवातीन में मसनूई जेवरात का रुझान बढ़ गया। मसनूई जेवरात खवातीन घरों में भी तैयार करती हैं, जो उनकी कमाई का जरिया भी है। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। सोने की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर होने के बायस जहां सराफा बाजारों की रौनकें मांद पड़ गई हैं, वहीं कुव्वत खरीद न होने की वजह से खवातीन शादियों के लिए मसनूई जेवरात की खरीदारी को तरजीह देने लगी हैं। शादी ब्याह हो या कोई और तकरीब, जेवरात के बगैर खवातीन का बनाव सिंगार अधूरा है। गोल्ड ज्वेलरी के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कीमतें भी गुज़िश्ता 1 साल में कई गुना बढ़ गई हैं। गोल्ड का रेट अपर से अपर होता जा रहा है, कस्टमर का रुझान बहुत कम हो गया है। तो हमारी तो सिर्फ यही दरख्वास्त है कि रेट को कम किया जाए कि जो बेचारे गरीब लाचार हैं वो अपनी बच्चियों के लिए कुछ न कुछ जेवर लेके उनको दे सकें। रंग बिरंगी खूबसूरत चूड़ियां और कंगन के बगैर शादी की तैयारी मुकम्मल नहीं होती। खवातीन और लड़कियां घरों में कांच और मेटल की खूबसूरत चूड़ियां तैयार करके बाजार में फरोख्त करती हैं। इस तरह खवातीन को घर बैठे रोजगार तो मिल गया है, मगर इनकी मेहनत के बराबर मुआवजा नहीं मिलता। हम लोग ना घर में काम करते हैं चूड़ियों का, ठीक है, लिहाजा मैं, मेरी अम्मी, ये मेरी छोटी बहन है, हम लोग काम करते हैं। भाई मेरे छोटे हैं। चाहे जेवरात जितने भी महंगे हो जाएं, खवातीन इन्हें खरीदे बगैर नहीं रह सकती। कैमरामैन मुगीश शहजाद के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान।